Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। हमने आपको लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल मैथ्स में रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में बताया था। हमारा उसके अलावा दूसरा इटरेटिव मेथड है जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। इसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उनके बीच में रियल रूट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का भी सेम वही काम है जो हमने इससे पहले वाले मेथड में बताया था, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड क्या वर्क करता है इसके बारे में हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप देखिए। न्यूमेरिकल मेथड का बेसिकली एम क्या है? द मेथड इज नोन एज द Bolzano method and can be called interval halving technique. The method is simple and straightforward. Given a backward bracketed root, the method repeat always the interval while continue to bracket the root and it will converge on the solution. This is also called a Bolzano method. Step 1. For graphical representation, choose x1 and xu as two cases for the root such as that function of x1 multiplied by function of xu is less than 0, or in other words function of x changes sign between x1 and xu. This is a basically main thing of Bolzano method या बाइसेक्शन मेथड। ये उसकी बहुत ही IMP कंडीशन है। Next is step number 2. Estimate the root xm of the equation function of x is equal to 0 as the midpoint between x1 and xu, as its formula is xm is equal to xl plus xu divided by 2. This is a general formula of to find the point, to find the iteration for given method using bisection for graphical representation also. Step number 3. Now check the following. If function of xl multiplied by function of xm less than 0, then the root lies between xl and xm. Then xl is equal to xl and xu is equal to xm. If function of xl multiplied by function of xm is greater than 0, then the root lies between xm and xu. Then xl is equal to xm, xu is equal to u. ये कुछ कंडीशन है जिनको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जब भी इस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारा मेथड किन कंडीशन को बेस्ड होके बनाया गया है। नेक्स्ट कंडीशन इज if function of xl into function of xm is equal to 0, then the root is xm. Stop the algorithm of this true. मतलब बेसिकली ये 3 कंडीशन पे बेस्ड वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ग्राफ के थ्रू दिखाई दे रहा है। स्टेप नंबर 4. New estimate xm is equal to xl plus xu divided by 2. Absolute relative approximate error is denoted by EA. Formula is mod x की power new m minus x की power old m divided by x की power new m multiplied by 100. So xm old is equal to previous estimate of root और xm new is equal to current estimate of root. ये आपके एब्सोल्यूट एरर का जनरल फॉर्मूला है। और याद रखना, न्यूमेरिकल मैथ्स में हम जब भी कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर आता ही है। तो एरर 3 टाइप्स के होते हैं, तो ये उसमें का फर्स्ट टाइप का एरर है। स्टेप नंबर 5. Check if absolute relative approximate error is less than pre-specified tolerance or if maximum number of iteration is reached. Yes, स्टॉप कर देंगे। नो होगा तो यूजिंग द न्यू अपर एंड लोअर गेसेस फ्रॉम स्टेप 3 गो टू स्टेप 2. अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। यू आर वर्किंग फॉर डाउन द टॉयलेट कंपनी दैट मेक्स फ्लोट फॉर ABC कमांड्स. The ball has a specific gravity of 0.6 and has a radius of 5.5 cm. You are asked to find the distance to which the ball will get submerged when floating in water. Solution is the equation that gives the depth x to which the ball is submerged underwater is given by f of x दिया है x की पावर 3 माइनस 0.165 x स्क्वायर प्लस 3.993 x 10 रेज़ टू द पावर -4। ये आपको एक फंक्शन दिया है जिसके अंदर हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करके उसका सोल्यूशन फाइंड करना है।
ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होगा आपको ग्राफ में दिख रहा है गिवन इक्वेशन का। चेकिंग इफ द ब्रैकेट इज वैलिड, तो हम चेक करेंगे। चूज द ब्रैकेट, क्या है आपका एक्सएल 0.00, एक्सयू 0.11, फंक्शन ऑफ 0.0 3.993x 10⁻⁻⁴. Another function is function of 0.11 is equal to minus 2.662x 10⁻⁻⁴. फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आया हमारा 0.11 एक्सएल का, और एक्सएम का आंसर आया 0.055. उसके बाद एफ ऑफ 0 निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ 0.11 निकालेंगे, और उसके बाद एफ ऑफ 0.055 निकालेंगे। उसके बाद हमारे एक्सएल हो जाएंगे फाइनल 0.055 0.11. ये इटरेशन सेकंड हो गया। ऐसे करके हमको कब तक इटरेशन निकालनी है, जब तक कि हमारे दो इटरेशन के रूट्स आपस में पॉइंट के बाद के 3 या 4 डेसिमल तक इक्वल ना हो जाए। ये इटरेशन थर्ड का आंसर है, ये इटरेशन थर्ड का आंसर है। अब उसके बाद कन्वर्जेंस, कहीं ना कहीं टेबल में हमने देखा कि हमें कब तक इटरेशन फाइंड करने पड़े, जब तो बाइसेक्शन में मिनिमम 11 और 12 टाइम तक आपको इटरेशन निकालने पड़ते हैं, क्योंकि दो इटरेशन का आंसर इनमें इस टाइप के मेथड में मिनिमम कम से कम 11 to 12 टाइम्स में इक्वलेंट होता है। So bisection method, a basic loop that is used to find root between 2 points for a function f of x. f of x is shown here. तो कहीं ना कहीं बाइसेक्शन मेथड का मेन एम क्या होता है, a basic loop that is used to find root between 2 points for a function f of x is show here. बाइसेक्शन मेथड का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, दो ग्राफ के थ्रू आपको बताया गया है। बाइसेक्शन मेथड में और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम हमें एक इक्वेशन दी है, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं इटरेशंस फाइंड करने हैं, और कब तक फाइंड करने हैं, जब तक कि 2 इटरेशन की वैल्यू आपस में सेम ना हो जाए, मिनिमम 3 या 4 डेसिमल। देयर आर 3 रूट्स, ये भी एक अनदर एग्जांपल दिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में भी हम बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसकी एप्लीकेशंस हो गई। ये हो गए बाइसेक्शन मेथड के कुछ टेबल्स। एडवांस्ड, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, ऑलवेज कन्वर्जेंट, द रूट ब्रैकेट्स गेट हाल्वेड विथ ईच इटरेशन गारंटी। और डिसएडवांटेज क्या है, स्लो कन्वर्जेंस, इफ वन ऑफ द एडिशन केसेस इज क्लोज टू द रूट द कन्वर्जेंस इज स्लो, मतलब बहुत धीरे मेथड है और बहुत टाइम लगता है। ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स भी हैं, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज such that it just touches the x-axis, it will be unable to find the lower and upper guesses, है ना। ये इसके हो गए ड्रॉबैक्स। फंक्शन चेंज साइन बट रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी ड्रॉबैक्स हो गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज बाइसेक्शन मेथड। इसके अंदर अभी हम और एग्जांपल आपको करवाएंगे, तो आपने कहीं ना कहीं ये कंपेयर किया होगा कि जो बाइसेक्शन मेथड है थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बिकॉज ऑफ रीज़न, क्योंकि इसमें जो इंटरवल के रूट्स होते हैं वो बार बार रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो रियल रूट निकालना होता है उसके लिए हमें कम से कम 11 to 12 टाइम इटरेशन फाइंड करना होता है, तब जाके हमारे 2 से 3 डेसिमल आपस में मैच करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में और डीपली और अच्छे से बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। Thank you very much. Have a nice day. Please take care.